Welcome to the 30 Days Vocabulary Challenge by Raman. It is an initiative by Engliaoholics. So we have successfully entered into week 3. So we have completed, it's the 14th day of the 30 Days Daily Vocabulary Challenge. And in the second week as well, like I promised, there is another bonus content which has been unlocked. So जो हम daily करते हैं, so जो डेली वोकैबुलरी चैलेंज है उसमें मैं आपको डेली 5 वर्ड्स सिखाती हूँ, उनके मीनिंग, ट्रांसलेशन, सेंटेंस फॉर्मेशंस एटसेट्रा. So क्योंकि it's 14th day और हम we have successfully entered, we have completed 2 weeks of challenge, and so we have another exciting bonus content which is unlocked. So please stay tuned towards the end of the video and quickly start. So this is best suitable for students who are preparing for spoken English, like who wants to improve their spoken English skills, or who are preparing for any exams like IELTS, TOEFL, PTE, GRE. आज का सेशन थोड़ा फास्ट रहेगा. आई एम जस्ट गिविंग यू a disclaimer because we have a lot to cover. We have bonus content coming up and you are definitely going to enjoy it. Okay, so please keep your notebooks and pen handy in case you want to take some notes. You're also allowed to take the screenshot if required, and please join on time so that we can finish on time. Please be serious and प्लीज बी रिस्पेक्टफुल. हो सकता है आपको जो मैं वर्ड सिखा रही हूँ वो ऑलरेडी आते हों, देन जस्ट ट्राई टू डू द प्रैक्टिस एंड बी रिस्पेक्टफुल. ओके, एंड like I said, I'll give you 5 words. Unka Hindi and Punjabi translations, both translations will be there on the screen. You'll make the sentences, and the way to participate is आप चैट बॉक्स में जो भी sentences बनाते जाओगे आप लिखते जाना. I'll quickly review, और अगर कुछ mistake होगा तो I'll correct it. Okay. All right. So, yes, you can ask the questions again in the chat box. So I am a serial entrepreneur. I run and own multiple businesses in the field of training and development, health and wellness, service sector. So we have like for computer coaching, French sessions, language proficiency programs. I've scored 8.5 bands in IELTS. I've written and published various ebooks. I own a company which is national award winner, and this is my 2024 best-selling ebook. I have my registered business in Ludhiana itself. All right, so we have the first word on the screen for day 14th vocabulary challenge, and apart from the 5 words, आज bonus content है वो like multiple choice questions, ऐसा कुछ नहीं, something really exciting. So please stay tuned. Okay, so the first word is sagacious. Sagacious. Sagacious इसका मतलब होता है बुद्धिमान, सोझी. Okay, okay, I think people are having issues while joining. Okay, you can see the translations on the screen, like sagacious, having or showing keen mental discernment and good judgment, wise or shrewd. देखो, example देखो. The sagacious old man offered valuable advice to the young couple. मतलब बुद्धिमान, जो बहुत ही सियानप ऐसा किरदार होता है ना, जो बहुत ही वाइज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सोजी, लाइक जिनको बहुत नॉलेज होते हैं, तो उनके लिए यूज किया जाता है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो स्क्रीन पे. शी वॉज नोन फॉर हर सगेशियस. और इसमें जो सगेशियस में जो जी है, अगेन इट विल बी जी एज इन गोवा. जी एज इन गोवा जैसे प्रोनाउंस करते वैसे. सगेशियस डिसीजंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस. ਉਹਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਝੀ, ਲਾਈਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੋਝੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸੈਂਟੈਂਸਸ, ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਟੇਕ ਟੂ ਮਚ time. In the meantime, I'll just quickly check the team chat, WhatsApp chat. There is an issue while joining. Try and make sentences using the word sagacious. Okay, all right.
Okay, quickly. We have the first word on the screen, sagacious. Sagacious means बुद्धिमान या सोजी. ठीक है, ऐसा पर्सन जो बहुत लाइक बुद्धिमान, बुद्धिमान मतलब वाइज, वाइज मैन. ठीक है, वैसे बोल सकते हैं. And we can't spend too much time on one word because we have bonus contents to cover today. I'll just wait for another 10 seconds and I'll move to the next word. और आज अगर ऐसा कुछ सेंटेंस होगा जो रह जाएगा, मैं बाद में फीडबैक दे दूंगी. डोंट वरी, ओके? So because we have extra topics to cover, so I'll go a little fast. All right, so I'm moving on to the next one. It's whimsical. Whimsical. ठीक है, इसमें whimsical देखो, इसका मतलब होता है अनुचित. कभी ऐसा होता है ना कि सन की वर्ड यूज करते हैं, so it's whimsical. एग्जाम्पल देखो, हर whimsical artwork. आर्टवर्क मतलब उसने कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ जो काम किया होगा, आर्टवर्क always brought smiles to people's faces. Okay, always brought smiles to people's faces. उसका जो अनुचित मतलब समथिंग विच इज नॉट वेरी सीरियस. अनुचित का मतलब क्या, उचित का मतलब क्या होता है, जो सही होता है, लाइक लोगों की डेफिनेशन में जो सही होगा. अनुचित मतलब समथिंग विच इज नॉट एज पर द गाइडलाइंस, है ना, ऐसा कुछ. तो हर whimsical आर्टवर्क मतलब जो थोड़ा हटके होगा, थोड़ा सन की होगा. ऑलवेज ब्रॉट स्माइल्स टू पीपल फेसेस. whimsical, अब ये किसी के काम के लिए भी बोल सकते हो, किसी की नेचर के लिए भी बोल सकते हो. नेक्स्ट, द whimsical नेचर ऑफ द प्ले delighted the audience. Okay, the whimsical nature of the play delighted the audience. तो जो उसका whimsical nature का जो उसका play था, उसने लोगों को खुश कर दिया. Now try and make sentences. Try and make sentence using the word whimsical. और pronunciation कैसा होगा? Whimsical. Whimsical. Okay. For the previous word, I have a sentence. All help the girl not to fall from the tree. Sagacious owl helped the girl not to fall from the tree. Okay. All right. We can consider that. All right. Another 10 seconds and I'll move to the next one. You can check the translations. You can check the meaning. Something which is like not right, like not done in a right way. Whimsical artwork, whimsical nature delighted the audience. Something which is thoda different from the norms. Okay, something different from the norms. All right, so I'm moving on to the next one. It's magnanimous. Magnanimous means shandar, very generous or forgiving. Okay, especially towards rival or less powerful person. मतलब magnanimous मतलब ऐसा कोई व्यक्ति या उसकी ऐसी कोई एक्टिविटी जो मतलब बहुत जेन्युइन हो, और मतलब उसको पता भी है कि ये पर्सन मेरा नुकसान कर सकता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ किसी इलीगल या कोई ऐसी अनुचित बात नहीं करता. राइट, उद्धार. एग्जाम्पल से समझना समझ आएगा. डिस्पाइट देयर राइवलरी. राइवलरी मतलब कंपटीशन, दुश्मनी. जैसे बिजनेस राइवल्स बोल देते हैं ना कि ये दोनों का आपस में कंपटीशन चलता है. ही शोड अ मैग्नानिमस गेस्चर. गेस्चर मतलब, गेस्चर मतलब गेस्चर बाय हेल्पिंग हिज कंपेटिटर. उसने एक गेस्चर मतलब शो किया, दुश्मनी के बावजूद भी उसकी मदद करके. हेल्पिंग हिज कंपेटिटर, उसने उसकी हेल्प करी चाहे उनका आपस में कंपटीशन ही था. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो. शी वाज प्रेज्ड फॉर हर मैग्नानिमस डिसीजन टू फॉरगिव हु हैड रॉन्ग्ड हर. उसका मैग्नानिमस डिसीजन क्या था? उसने प्रेज किया, चाहे फॉरगिव कर दिया, चाहे लोगों ने उनके साथ गलत किया था. ओके, शी वाज प्रेज्ड फॉर हर मैग्नानिमस डिसीजन to forgive those who had wronged her. Wronged her मतलब जो जिन्होंने उसके साथ गलत किया था. Okay, try and make sentence, make it fast. Magnanimous. Very generous और forgiving. कईयों का नेचर होता है ना, बहुत forgiving नेचर के लोग होते हैं, so उनके लिए यूज किया जाता है.
ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, प्रूडेंट। प्रूडेंट इसका मतलब होता है विवेकशील, मतलब बहुत ही सियाना। अगर आप कोई लाइफ च स्टेप लेने हैं तो उन्हें बोलते हैं प्रूडेंट। एग्जांपल समझो, he made a prudent investment that secured his financial nature future financial future। उसने एक सतर्क या फिर विवेकशील, विवेकशील मतलब बहुत ही स्मार्ट, ओके, निवेश किया जो उसे आर्थिक भविष्य ਨੂੰ सुरक्षित कर लिया। नेक्स्ट, इट्स प्रूडेंट टू सेव मनी फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। एक बहुत सियानप वाली गल है या विवेक वाली गल है, लाइक इट्स अ स्मार्ट या फिर इंटेलिजेंट को जैसे बोल सकते हैं ना, लेकिन समथिंग मोर जो जिसको ज्यादा इंटेलिजेंस से ज्यादा हम बोलेंगे प्रूडेंट। अचानक खर्चे लिए पैसे बचाना विवेकशील है या साव सतर्क है, लाइक यू शुड बी अवेयर एंड वेल प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग एक्सपेंसेस, तो उसके लिए बोलते हैं प्रूडेंट। Prudent. Okay, moving on to the next one, prolific। prolific इसका मतलब होता है प्रोड्यूसिंग इन लार्ज क्वांटिटी, मतलब महान योगदान। एग्जाम्पल से समझो, she was a prolific writer publishing several books each year, मतलब हर एक साल वो बहुत सारी बुक्स पब्लिश करी थी, तो वो एक तरह से बहुत योगदान डाल रही थी बुक्स पब्लिशिंग में। द साइंटिस्ट was prolific in his research, contributing numerous groundbreaking studies। मतलब जो साइंटिस्ट था वो अपनी रिसर्च में प्रोलिफिक था, बेस्ट था, या उस तरह से योगदान दे रहा था, उसका ग्रेट कंट्रीब्यूशन था। बोलते हैं ना कि उस पर्सन का बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है। ओके, लाइक फ्रीडम फाइटर्स हैड प्रोलिफिक रोल इन गेनिंग द और इन गेटिंग द फ्रीडम। ओके, सो इस तरह से इसका यूज करते हैं। नाउ ट्राई एंड मेक सेंटेंस, इट्स अ लास्ट वर्ड ऑफ द डे 14th vocabulary challenge, and then we'll move to the bonus content. Prolific. Try and make sentences. Okay, another 10 seconds. You can read the translations on the screen. Then I'll start with the bonus content. All right, so that was it for the 5 words of the day. So I'm just discussing the bonus content, which is commonly used idioms and phrases. The first one is bite the bullet। bite the bullet। ओके, बाइट का मतलब क्या होता है? चबाना। बुलेट का मतलब क्या होता है? गोली। बट इसका एक्चुअल से ये मतलब नहीं होता है। इडियम होते हैं अखौता या मुहावरे जैसे हम बोलते हैं। ओके, बाइट द बुलेट का मीनिंग होता है टू एंड्योर अ पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन दैट इज अनअवॉइडेबल। कठिन परिस्थिति का सामना करना, मुश्किल हालात का सामना करना। एग्जाम्पल, इवन दो शी वॉज स्केर्ड ऑफ द डेंटिस्ट, she decided to bite the bullet and go for her appointment। चाहे वो डेंटिस्ट से डरती थी, she decided to bite the bullet, उसने सोचा, उसने फैसला किया। bite the bullet मतलब मुश्किल हालात का सामना करने लिए उन्हें फैसला कर लिया, and go for her appointment। ओके, जो अनअवॉइडेबल है, डिफिकल्ट सिचुएशन, उसका सामना करने को बोलते हैं बाइट द बुलेट। ओके, एग्जाम्पल बनाओ, इसका सेंटेंस बनाओ, बाइट द बुलेट। लाइक किसी मुश्किल, कोई मुश्किल सिचुएशन का सामना करने के लिए जब हम प्रिपेयर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं बाइट द बुलेट। शी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट, शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ टू बाइट द बुलेट। ओके, इस तरह से इसको सेंटेंसेस में बनाओगे। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन, idiom, दैट्स अंडर द वेदर। अब ये बहुत कॉमनली यूज होता है। सुना है आपने? यस नो लिखो चैट बॉक्स में। अंडर द वेदर सुना है कभी? अंडर द वेदर किस चीज के लिए बोलते हैं? कोई आइडिया? व्हाट डज दिस मीन? और जब मैं इसका मीनिंग बताऊंगी ना तो आप बोलोगे कि हाँ ये तो मैम यूज कर सकते हैं।
नहीं सुना। ओके, अंडर द वेदर मतलब होता है फीलिंग इल और अनवेल। जब बोलते हैं ना कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, या फिर आजकल ये बहुत चीज हम सुनने के लिए आता है कि वेदर चेंज हो रहा है तो मैं ठीक नहीं फील करा। नाउ इट हैज नथिंग टू डू विद द वेदर स्पेसिफिकली। मतलब जब हम फील मतलब अच्छा फील नहीं करते, इट कुड बी ड्यू टू वेदर, इट कुड बी ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट, जैसे हवा पानी चेंज होता है तो उसके हिसाब से भी। तो he could not come to work today because he is feeling a bit under the weather. वो थोड़ा अनवेल फील कर रहे हैं। समझ आया? I can't go to class today. I cannot come to class today because I'm feeling under the weather. I would please grant me leave for the day because I'm feeling under the weather. Under the weather मतलब feeling ill or unwell, बीमार महसूस करना। तो इसके आगे feeling आप लगा सकते हो। I'm feeling a bit under the weather. थर्ड वन जो कॉमनली यूज होता है, दैट इज हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब क्या होता है? अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और अ पर्सन टू डील विद। मुश्किल समस्या या किसी के साथ डील करना जब हमें पड़े तो हम बोलते हैं इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। द मैथ प्रॉब्लम वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक बट शी इवेंचुअली सॉल्व्ड इट। ओके, मैथ प्रॉब्लम हार्ड नट टू क्रैक था, मतलब एक बहुत मुश्किल था बट इवेंचुअली मतलब अंत में उसने क्या किया, उसने उसको सॉल्व कर लिया। All right. So these are the three common idioms and phrases which are mostly used. और मतलब जैसे इसको अगर आप अपनी vocabulary में और अपनी डे टू डे कॉन्वर्जेशन में इंक्लूड करोगे तो आपकी इंग्लिश और भी ज्यादा impressive हो जाएगी। All right. There was another example. The new project turned out to be a hard nut to crack for the entire team. All right, so let's quickly revise what we have done. The first is sagacious, whimsical, magnanimous, prudent, prolific. Okay, all right. Another bonus content, like I said, because हम 2 weeks अपने 30 days vocabulary challenge के खत्म कर चुके हैं, and जो 14th day it's another milestone that you have achieved. तो इसके लिए एक और बोनस कंटेंट, इट्स टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर क्या होते हैं? जैसे आपने काफी बार सुना भी होगा ना, फॉर एग्जाम्पल पके पेड़ पे पका पपीता, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें टंग ट्विस्टर, दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी एंड टू गेट अ बेटर होल्ड ऑन द लैंग्वेज, लाइक स्पीकिंग स्किल्स में आपको। और ये मतलब एक तरह से आप गेम की तरह इसको प्ले करोगे एंड यू विल नॉट इवन रियलाइज कि आपकी ओवरऑल स्पोकन इंग्लिश स्किल्स कितना इंप्रूव हो जाएगा इससे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड यू हैव, मैं एक बार आपको बोल के दिखा दूंगी एंड आफ्टर द मीटिंग, आफ्टर द क्लास आप डेली इसको 5 times रेपिटेशंस करके ट्राई करना। ठीक है? फर्स्ट वन इज 6 slippery snails slid slowly seaward. 6 slippery snails slid slowly seaward. एग्जाम्पल देखो, स्नेल्स क्या होते हैं? स्नेल्स इट्स काइंड ऑफ, देखते हैं ना, घोंगे, राइट? तो 6 फिसलनदार, इट्स अ नेम ऑफ द स्पीशीज। ओके, फिसलनदार वो क्या क्या होते हैं? स्लिपरी, उनका जो टेक्सचर होता है दे आर वेरी स्लिपरी। अब जैसे बारिशें होती है तो यू सी अ लॉट ऑफ स्नेल्स कमिंग आउट। ओके, 6 फिसलनदार घोंगे धीरे धीरे समुद्र की ओर फिसले। ऑलराइट, सो सेकंड वन, तो इसको आप रिपीट करोगे 5 to 6 times. Second one, a big black bear sat on a big black rug. A big black bear sat on a big black rug. A big मतलब बड़ा, black bear काला भालू, sat मतलब बैठ गया, big black rug, rug क्या होता है? गलीचा, कारपेट, एक बड़े काले गलीचे के ऊपर बैठ गया। This again the second tongue twister. A big black bear sat on a big black rug. Okay, moving on to the third one. Fred fed Ted bread and Ted fed Fred bread. Okay, all right, so इसको कैसे बोलोगे? Fred and Ted दो लोगों के नाम है। Okay, Fred fed मतलब खिलाया, feed fed fed होता है ना। Fred fed Ted bread. Fred ने Ted को रोटी खिलाई या bread खिलाई, and Ted ने फिर Fred को रोटी खिलाई। So it's a little tricky one. Fred fed Ted bread and Ted fed Fred bread. Okay, I'm also getting little okay, तो इसको आप again you can practice on this one. Fred fed Ted bread and Ted fed Fred bread. Okay, now I got it right. So you can practice for this one. It's very easy, लेकिन fluency पे आपको you will realize कि कितना improvement आएगा.
Fourth one, she sees cheese, she chews cheese. वह पनीर देखती है, वह पनीर चबाती है. She sees मतलब देखना, cheese मतलब पनीर, chew करना, चबाना, chew करते हैं ना, like जैसे बोलते हैं 32 times आपको chew करना चाहिए, like I, I'm not sure if it is 32 times, like there's a particular number कि इतनी बार चबा चबा के खाओ, right? So she sees cheese, she chews cheese, ठीक है? पनीर देखती है, पनीर चबाती है. Last one on the screen, tongue twister. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Okay, woodchuck होता है एक species. It's like एक rat के जैसा होता है but little bigger. Woodchuck, ये जो ये लिखा है ना woodchuck, ये it's a name of species. How much wood? Wood क्या होता है? लकड़ी. Okay, a woodchuck chuck मतलब चबाना. If a woodchuck, अगर एक woodchuck could कर सकता, chuck wood. Okay, so how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? All right, so this is another tongue twister. आप इसकी practice कर सकते हो. It's very interesting and very enjoyable method to improve your spoken English skills. I hope you have taken the screenshot क्योंकि bonus content मेरा notes में मैं नहीं share करती. ये सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, बाकी लोगों को बोनस कंटेंट नहीं मिलता. ओके, सो अगर कोई स्क्रीनशॉट रह गया तो मुझे चैट में बता दो, मैं पिछली स्लाइड्स आपको दिखा देती हूँ. नोट्स बना लिया आपने साथ साथ में? यस नो इन द चैट बॉक्स. कुछ अगर स्क्रीनशॉट रह गया है तो बता दो. आई जस्ट मूव टू द प्रीवियस स्लाइड्स. और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क. कोई वर्ड मीनिंग, कोई सेंटेंसेस रह गया हो तो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स. All right, so we are good to go. So so there's this attendance, like there's this Facebook event which is there on the live on the Facebook. So आप कल का attendance mark कर दो, like for 4th of July, right? उस पे आप going mark कर दो so that आपका attendance यहाँ पे register हो जाए. आज like we had a lot to cover, so थोड़ा fast रहा session. तो अगर कोई भी सेंटेंस नहीं बना पाए, किसी का मीनिंग नहीं समझ आया, तो नाउ इज द टाइम टू आस्क. आई एम हियर फॉर अनदर 5 minutes. कोई भी मीनिंग, कोई भी ट्रांसलेशन, कोई भी सेंटेंस अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क. ओके, रिवाइज मैं करवा देती हूँ आपको. सगेशियस, सगेशियस मतलब इंटेलिजेंट, वाइज उस पर्सन के लिए यूज करते हैं सगेशियस. ओके, नेक्स्ट विम्सिकल. विम्सिकल मतलब सन की, समथिंग डिफरेंट, समथिंग अनयूजुअल, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं. लाइक सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हो. मैग्नानिमस, मैग्नानिमस, ओके, शानदार. प्रूडेंट, प्रूडेंट. देन प्रोलिफिक, प्रोलिफिक. So without even realizing now, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि it's a week, second week हमने cover कर लिया. We are on the 14th day of the 30 days vocabulary challenge by Engliaoholics, and without even realizing, आप realize नहीं करोगे कि हमने कितने new words सीख लिए. These are for the first 7 days. तो आज मैं 7 days का रिवाइज करवा रही हूँ आपको, कल मैं next 7 days रिवाइज करवाऊंगी. देखो, day 1 पे हमने सीखा explore, friendship, improve, celebrate, resilient. And without even realizing, देखो 14 days में आपने 70 new words अपने vocabulary में add कर लिए. 70 new words. और daily 5 words सीखते सीखते you have, just in 14 days you have 70 new words to use. Okay, day 2 पे देखो हमने किया curious, tedious, knowledge, motivate, perseverance. तो डे 1 में अगर कोई डाउट है, डे 2 के वर्ड्स में अगर कोई डाउट है, वो आप मुझसे भी पूछ सकते हो. डे 8 to 14th मैं कल रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है. आज अगर फर्स्ट 7 days में जो हमने किया, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, किसी मीनिंग का नहीं पता चल रहा, चैट बॉक्स में वर्ड लिख दो. आई जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन. ओके, डे 3 inquisitive, diligent, articulate, perplex, oblivious. Day 4 cautious, conscientious, grateful, enhance, ubiquitous. Day 5 ambitious, reluctant, eloquent, imminent, disseminate. Any doubt in these words? Then moving on to the day 6, frugal,
impartial, innovative, pragmatic, alleviate. Day 7, arduous, meticulous, proficient, astute, cognizant. कोई वर्ड इसमें नहीं समझ आया, किसी वर्ड का आपको ट्रांसलेशन, मीनिंग, सेंटेंस पूछना है तो नाउ इज द टाइम, आप अभी पूछ सकते हो. ओके, प्रैग्मेटिक. प्रैग्मेटिक होता है लाइक जैसे किसी सिचुएशन में हम ऐसे बोलते हैं कि प्रैक्टिकल होके सोचो इस चीज को, लाइक प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, you just think pragmatically if you want to come out of this situation, if you want to solve this problem. या जैसे कई बार बोलते हैं ना कि अगर किसी के साथ कोई झगड़ा है तो प्रैक्टिकल होके सोचो, इस चीज को प्रैक्टिकली आप सॉल्व कर सकते हो. तो वहां पे प्रैग्मेटिक, और प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? pragmatic. Pragmatic. Okay. um Another पूछा है astute. Okay, it's for the day 7. astute. Astute इसका मतलब होता है क्लेवर, बट इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में बोलते हैं, astute. ओके, इसका मतलब होता है लाइक चतुर. चतुर, राइट, बट इन अ पॉजिटिव वे. किसी की बुराई करने के लिए नहीं बोलते कि वो बड़ा क्लेवर है या ही इज वेरी astute. नहीं, इसको पॉजिटिवली बोला जाता है कि ही इज वेरी astute employee. He's an astute employee and he's very resourceful. Resourceful भी हमने किया था ना कल, yesterday or maybe day before yesterday we have covered that word. So astute is another like एडजेक्टिव के लिए आप यूज कर सकते हो, किसी की स्ट्रैटेजीज के लिए, किसी के नेचर के लिए, उस जगह पे आप astute यूज कर सकते हो. ओके, एनी अदर वर्ड जिसका मीनिंग नहीं समझ में आया, जो सेंटेंस में नहीं पता चल रहा. डे 1 पे देखो, डे 1 इज वेरी लाइक इट्स अ वेरी बिगिनर लेवल. एक्सप्लोर, फ्रेंडशिप, इम्प्रूव, सेलिब्रेट, रेजिलियंट. इट्स वेरी बिगिनर लेवल वर्ड्स. एंड जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द एंड जाते जा रहे हैं फॉर द 30 days vocabulary challenge, आई एम इंक्रीजिंग द लेवल एज वेल. लाइक डे बाय डे हम वर्ड्स भी इम्प्रूव करते जा रहे हैं. ओके, इंक्विजिटिव. इंक्विजिटिव होता है लाइक जिज्ञासु. ओके, अब देखो डे 2 और डे 3 में सिमिलर है. फर्स्ट वर्ड देखो, क्यूरियस, इंक्विजिटिव, दोनों का ही मतलब होता है जिज्ञासु. फॉर एग्जाम्पल, किसी की नेचर, ही इज ऑफ वेरी इंक्विजिटिव नेचर. ओके, इंक्विजिटिव नेचर का कोई अगर कोई पर्सन होगा तो उसको बोलते हैं इंक्विजिटिव. ओके, एनी अदर वर्ड? एनी अदर वर्ड? आर वी गुड टू गो? और जब आप मैसेज करते हो ना, जस्ट चेंज इट टू एवरीवन. ओके, डायरेक्ट मैसेज मत करो, जस्ट चेंज इट टू एवरीवन. एनी अदर वर्ड फ्रॉम डे 1 टू डे 7. डे 8 टू डे 14 मैं कल रिवाइज करवाऊंगी. सो यू हैव अ चांस टू आस्क. अगर कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता चला, कोई ट्रांसलेशन नहीं पता चला, तो आप कल पूछ सकते हो. ओके, एनी अदर वर्ड? आई एम हियर फॉर अनदर 5 minutes. आज के किसी वर्ड में कोई इशू मतलब नहीं समझ आया हो, कोई ट्रांसलेशन, कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं पता चल रही किसको कैसे प्रोनाउंस करना है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो. ओके, अलिविएट. अलिविएट होता है रिड्यूस करना, लेकिन ये सिर्फ यूज होगा जब व्हेन इट इज रिलेटेड टू पेन या कोई भी एफर्ट्स के रिलेटेड. लाइक अलिविएट, अब ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई वॉल्यूम कम कर दो, कुड यू अलिविएट द वॉल्यूम, नहीं, वहां पे यूज नहीं होगा. व्हेन इट्स रिलेटेड टू पेन या एफर्ट्स, सो आई वुड सो आई हैव स्टार्टेड न्यू मेडिकेशन एंड दैट has helped me alleviate the pain. That has helped alleviate the pain. Okay, तो इस तरह से इसको बोलते हैं. Okay, I think we are good to go. So just like every day, I'll be sharing the passage using the 5 words that we have done today. Again, that passage is going to be absolutely free. Like you can just check the notes in the WhatsApp group. So you can follow us on YouTube, Facebook, Instagram,
there's an exclusive Facebook discussion page, like जैसे मैंने आपको बताया कि there's a section where you can mark the attendance. So you can follow the Facebook event so that you're notified. जो भी हम words करते हैं, जो भी translations, जो भी sentences बनाते हैं, और उस 5 words को combine करके मैं एक message भी share करती हूँ, so that you have a better understanding कि आप इसको कैसे अपनी day to day life में include कर सकते हो इन words को. All right, last chance. Any other question? Any question from day 1 to till now? जितने भी हमने words किए हैं उनके लिए कोई भी question? Any question? All right, so if you have any question, you can put it into the Facebook discussion page, and you can follow us on YouTube. YouTube के ऊपर भी मेरे words का vocabulary के कुछ videos हैं, वो आप जाके देख सकते हो. Again, it will be very beneficial for you. And stay tuned, and I'll just see you tomorrow at 8:25, and we'll continue with the next 5 words. All right, thank you so much for your time. Bye-bye.